how the organization works, what needs to be done, what are the expectations that can be implemented or helpful for the enterprise sector or the manufacturing sector or the industrial sector. हमने तो चैट जीपीटी 2 साल पहले देखा and you were telling us that research in this area started back in 1950s. Yeah. What algorithm does it take to become a human? What is the last thing AI will step foot in? What is the last thing? मेरा ख्याल है दज्जाल ही होगा, उसके पास कंट्रोल आ जाएगा. I don't know, but honestly speaking, this is something which I have to think of. But AI का combination जब आप देखेंगे ना, तो you will find it with every upcoming technologies. बड़ी क्यूरियोसिटी है इस इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है और बहुत ही इवॉल्व होते हुए देखा है 20 सालों में हम लोगों ने ना. तो इट्स गुड टू हैव अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, दिस सेक्टर, and enjoying our time here. Going through your profile, you have been one of the few people, and especially on the commercial, techno-commercial side of it, जिन्होंने अपना एक बड़ा important role play किया in rolling out of infrastructure and communication services in the country, specifically talking about fiber optic rollout through length and breadth of Pakistan. और वहाँ से फिर आपकी transition होती है towards launching of data center services, और फिर cloud computing and managed IT services, information security and IT enabling services. So I think your venture into IoT created your further interest into artificial intelligence and data science, which you are spearheading at the moment. Oh, absolutely, yes. Because actually, practically पहली दफ़ा algorithms use होते हुए देखे. Wow. ठीक है ना. So बहुत करीब से देखे, बहुत deep dive करके देखा कि how these algorithms are working and what are the parameters and how it's alerting, notifying, giving insights about the water. So that is something very fascinating for me at that time. यहाँ पे मेरा एक question है सर कि after having so much after spending so much time in technology business और ये सारे algorithms वगैरह आपने देख लिए, what algorithm does it take to become a human? What makes us different from the machines and robots and artificial intelligence and all that? I mean, there are so many things. What differentiate us as a human is actually the empathy is one of the most foundational things. कुछ लोग शायद एग्री ना करें, लेकिन spiritual part is another one. And then the trust factor. We are social animals. Social connections are one of the things. Emotional quotient, बिल्कुल सही है. So there are so many things. And capability to think as well. Reasoning, exactly. Reasoning, critical thinking, and capability to create. Absolutely, capability and learning new things every day. So these are the things which actually differentiate us from any other being, either biologically or artificially. और मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल काफ़ी देर पहले फरमा गए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को. तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है. So what is artificial intelligence? And what are different, how do we classify it? What are different models or types of artificial intelligence are there, and what types are right in now in the developing phase, जो भी चीज़ें technologies develop हो रही हैं, तो and how is it different than human intelligence? तो इसके बारे में थोड़ा सा explain करें. So basically AI को अगर simple words में define करें, एक आप machine समझ लीजिए. It's a machine which is smart enough compared to human or act like human. That is actually artificial intelligence. Okay. ठीक है. और उसमें फिर हमने बहुत सारी चीज़ें अभी होते हुए भी देख रहे हो, पिछले 10-15 सालों से हमें नज़र भी आ रही हैं. दैट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब उसमें डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं और उसमें आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल
यू नो जनरल इंटेलिजेंस है एंड आर्टिफिशियल कैपेबल और कॉन्शियस इंटेलिजेंस है. मेनली दीज आर द थ्रीज. अब जिसको मैं आर्टिफिशियल कैपेबल इंटेलिजेंस कह रहा हूँ उसको लोग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहते हैं. वाओ. तो ये एक्चुअली 3 इसकी जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, बिकॉज आई एम स्टिल इन अ लर्निंग पार्ट, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. तो ये मेनली 3 फील्ड्स हैं जो हमें नज़र आती हैं. और ये 3 फील्ड्स जो है वो जिन पे पिछले 70-80 सालों से काम चल रहा है. 1950 से अगर आप देखेंगे, जब से साइंटिस्ट एंड दी people, researchers, experts are using it, starting from Alan Turing to the Sam Altman or Elon Musk. Okay, so हमने तो ChatGPT 2 साल पहले देखा, and you were telling us that research in this area started back in 1950s. Yeah. Wow. That's so for the first time, Alan Turing break the code of the German, you can say, machine signals called Enigma via his machine. So they'll be able to catch the signals and the information which they are sending from one place to another. Wow. So how far we are away from developing or being practically able to see artificial conscious intelligence or AGI? So ANI, we are using ANI in different use cases. We are using ANI. Generative AI is ANI. Yeah, you can say that, but I would suggest कि इस तरफ नहीं generative AI जाता है. ANI is the specific task अगर अभी हम बात करें, ठीक है, because AGI के साथ ही आगे लिंकअप होना है. generative AI के साथ ही आगे लिंकअप करेंगे ये to AGI. तो लेकिन ANI के अंदर आपको यू रिमेंबर दोज डेज जब डीप माइंड ने अटारी गेम को उनके बॉट ने हराया था, राइट. एंड देन उसके बाद वो अल्फागो सिनेरियो जिसमें जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको हराया. सो दैट इज द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, दैट द ANI इज डू. एक तो वो पार्ट है, फिर टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन में देखा, तो दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट, राइट. AGI इस थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि वो हम देख रहे हैं और उस पर काम हो रहा है. बट ASI इज़ करंटली स्पेकुलेटिव, मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव, और उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, ASI को लेकर और AGI को भी लेकर. बट वी आर सीइंग पोटेंशियल इन डिफरेंट सेगमेंट्स. करंट जो यूज़ केसेस हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन दी LLMs एंड दी इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग. अब आप ये देखिए कि LLM जो करंट LLMs हैं, दीज आर thousands times intelligent compared to any normal human. Okay. The information, the vast amount of information they have, if you see intelligent तो नहीं कहेंगे ना सर, ये कहेंगे कि they are more informed than normal human. Yeah, but इतनी information, क्योंकि बनाया तो हमने, तो intelligent तो हम हैं. Absolutely. We created it. But when you see it in a longer run, when you see it in different industries, ठीक है, जहाँ पर बात ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, राइट, इंडस्ट्रीज सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर सकेंगी नहीं कर सकेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं. तो उसमें फिर नज़र ये आता है कि कमिंग ईयर्स के अंदर वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग एंड वर्किंग ऑन AI एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दीज टूल्स. बिकॉज या तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होगा जो एक्चुअली यूज़ कर रहा होगा, अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगा. जो नॉर्मल रेटिंग वाले बंदे होंगे, सीम्स लाइक कि वो जॉब्स AI ले जाएगी, स्पेशली ऑन द डेस्क, कंप्यूटर डेस्क पार्ट. पर्ची सिस्टम आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत चलता है, राइट. और हमारे स्टाफ ने भी एक पर्ची चला दी है, ठीक है. दे आर सो एक्साइटेड एंड हमारी टीम जो है टू हैव यू हियर, और वो भी डिस्कशन सुने. तो हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट थिंग AI will
step foot in? What is the last thing? मेरा ख्याल है दज्जाल ही होगा, उसके पास कंट्रोल आ जाएगा. I don't know, but honestly speaking, this is something which I have to think of. But AI का combination जब आप देखेंगे ना, तो you will find it with every upcoming technologies. Okay. Research perspective में अगर आप देखें ना, और वो किसी भी फील्ड में उठाएं तो उसकी जो यूजेज है वो उसमें हमें नज़र आएगा. मिसाल के तौर पे 100-150 साल से हमारे पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ठीक है, इवॉल्व किया उसने इमेजिंग के अंदर, डायग्नोस्टिक के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, पर्सनल हेल्थ केयर के अंदर, ड्रग डिस्कवरी के अंदर, और वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है जिस तरह हमारे पास कंप्यूट बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ती गई, राइट. सो व्हेन यू सी दैट पार्ट, राइट, आज एआई क्या कर रहा है? अभी 2 हफ्ते पहले मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि नाउ एआई कैन डिटेक्ट कैंसर जस्ट सीइंग द चेस्ट एक्सरे. ठीक है, दैट इज समथिंग अमेजिंग. जस्ट अज्यूम द कॉस्ट फॉर द डेवलपिंग नेशंस जो यू नो $300-400-500 का पैट स्कैन या CT स्कैन अफोर्ड नहीं कर सकते. एक्सरे कॉस्ट लाइक 1,000 or 2,000 rupees. So when you see all such things, इसके 2 इम्पैक्ट है. एक तो डॉलर इम्पैक्ट है, बिकॉज यू हैव टू परचेज समथिंग फ्रॉम, वी आर नॉट मेकिंग आवर मशीन्स. एंड एक छोटे से यूज केस को ऑन टॉप ऑफ द एक्सरे, इफ यू बिल्ड इट, you'll reduce the cost. Definitely. And the benefit is that you can detect such things early. And plus you can bring in more people, you can cover more people. Yeah, because the cost will be reduced. Yeah, so same goes with agriculture. You know, precision farming. Yeah, you're right, because there is no specific answer to which will be the last thing AI will step foot into. It is the same as the computing revolution when it came. और आज हर एक फील्ड में और हर एक ह्यूमन बीइंग इज यूजिंग मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर्स. आपके पास मोबाइल भी है, टैबलेट, फैबलेट एंड लैपटॉप्स एंड ऑल द डिवाइस. यू आर इक्विप्ड विद ऑल द डिवाइसेस. इवन आपने वो स्मार्ट वॉच भी पहनी हुई है और स्मार्ट ग्लासेस भी आ गए हैं. ठीक है, so you are totally fully equipped with the compute and computers in every field of life. Similarly, AI will get into everything. Yeah, so what if scenarios build कर सकते हैं? That's why I said I don't know. What if scenarios पे बात हो सकती है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई AI ये करेगी और ये नहीं करेगी. I would say that would be sort of nonsense, you know? Yeah, that's not possible. कि आप predict कर सकें कि currently it's unseen, because we are somewhere in a middle stage. What will come next can be judge, observe and experience. Based on the experience हम बता सकते हैं कि where it will lead us. But what if scenarios we can build? कर सकते हैं. देखो, ठीक है, आपका अपना कैरियर, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट में करना था, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली मैं एंड पे करूँ, बिकॉज आई वांटेड टू नो अ लॉट अबाउट, एंड आवर ऑडियंस वांटेड टू नो अ लॉट अबाउट AI. आपका अपना कैरियर ओवर 2 decades इनटू द टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपने स्टार्ट किया, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड 20-25 साल आपका कैरियर है सारा टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में, और पाकिस्तान में है. ठीक है, बट वाइल इन अर्लियर इन द डिस्कशन मुझे ऐसा लगा जैसे आप बता रही हैं कि स्पेसिफिकली जब हम AI की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि पाकिस्तान काफ़ी पीछे और बहुत सारे हमारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं और ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है. एजुकेशन फाउंडेशन हमारी तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, while you yourself have done everything in Pakistan, you have earned this fame in Pakistan, आपका celebrated career जो है for over 20 years, this is because of Pakistan. और आज आप माशाल्लाह you are working in the field of artificial intelligence and data sciences, developing new products and doing all the research. तो हमारी ऑडियंस के लिए आप बताएं, ये पाकिस्तान में रहते हुए पॉसिबल है, या आपके अंदर कोई ख़ास सलाहियतें थी जो आपने पाकिस्तान में इन तमाम मुश्किलात के साथ कर लिया? नहीं, देखिए मैं बताऊं, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा. मैंने पहले भी जैसे कहा कि आई एम जस्ट स्टूडेंट एंड आई एम स्टिल लर्निंग. There are people who are doing excellent job in AI.
what I'm saying is कि और अगर फात साहब एआई से हट के भी बात करें, डू यू स्टिल बिलीव कि क्योंकि अब एक ट्रेंड बन गया है ना, मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी जो हमारे गेस्ट थे उनसे इस टॉपिक पे बात की, एंड सम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है। सो मैं आपका व्यू भी ये जानना चाह रहा था कि डू यू बिलीव कि, क्योंकि हम अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और यहाँ रहते हुए ग्रो करना और सीखना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए सीखना तो बहुत आसान हो गया ना। अब तो YouTube के ऊपर आप जाएं, यू कैन हैव द एक्सेस फॉर एवरीथिंग ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बने हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो एक्चुअली आपको सपोर्ट करती है फॉर अ फाउंडेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कितने डाटा सेंटर्स हैं, हमारे पास कितने डाटा सेंटर्स में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं और कितने इस तरह के क्लाउड सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि एक स्टार्टअप 5,000 में 10,000 में कोई ऐप बना रहा हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। There is a huge potential. We have like 45 to 50% youth in Pakistan and they are doing excellent job. But क्या पिछले 15-20 सालों में हमने उस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करा जिस तरह से हम देखते हैं इंडोनेशिया को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं, सराउंडिंग्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अंदर लर्निंग नहीं है। हम माशाल्लाह एज अ नेशन लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में इज फार अहेड, यू नो। व्हाट वी नीड इज द फाउंडेशन एंड द सपोर्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एंटिटीज एंड डिपार्टमेंट्स जहाँ पर ये सपोर्ट अवेलेबल हो, हमारे लिए इजी यू नो एक्सेसिबल चीज़ें अवेलेबल हों। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा ये मतलब नहीं था। तो पोटेंशियल इज एनफ ह्यूज। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कंपनीज। और उससे पहले फिर इसका मतलब है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि yes, there is a role of public sector institutions or government to be played in the areas of infrastructure development, in the areas of technology development, policy support, regulations. But that doesn't give excuse to our young audience and young people and youth कि वो जाके इन नए skills को सीखें ना। So ये skills गवर्नमेंट का भी एक you know प्रोजेक्ट जो चल रहा है। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में भी आ रहे हैं ना। बट वी नीड टू डू अ लॉट ऑन दोस एरियाज। अच्छा, आपके पास क्या एजुकेशनल K-12 सिस्टम के अंदर AI पढ़ा रहे हैं? This is where we have to see. I mean, these are the foundations. That's what I am talking about. क्योंकि प्राइवेट में तो हर स्कूल का अपना करिकुलम है। Yes, infrastructure किसी education. स्कूल को हम देखते हैं जी, हम वो STEM की मार्केटिंग कर रहे होते हैं और कोई शायद अच्छा, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। हमारे पास कोई ऐसा नेशनल करिकुलम नहीं है। बिल्कुल सही है, एग्री। So this is where we have to see. And that is, sir, my next question is कि obviously you keep on interacting with the people in the public policy side as well, and from people from the research in your research from different universities in Pakistan and across the globe, और फिर आपका enterprises के साथ भी interaction रहता है। तो एंटरप्राइजेज हमेशा ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि बहुत बड़ा स्किल गैप है, जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और अभी आपने खुद करिकुलम की भी बात की, तो ये चलिए स्कूल लेवल तो हो गया, बट डू यू सी कि हमारी जो इवन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑल्सो हैव अपडेटेड करिकुलम विद इन अलाइनमेंट विद द मार्केट डिमांड्स, और फिर जो पढ़ाने वाले भी वहाँ पे लोग हैं, बिकॉज ये हमारी एक बड़ी डिबेट रिसेंटली हुई और भी फोरम्स के ऊपर, एंड there is one of the forums where I was invited and the same question was asked to me. मैंने तो बड़ा कैटेगोरिकली और ब्लंटली बताया कि मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ मुझे नज़र आती है, ग्लोबली भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी एक प्रोफेसर के बस की बात नहीं है कि वो एक ऐसा ग्रेजुएट तैयार करे जो कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल सेट उनको चाहिए, मार्केट रेडी प्लग ऐसी रिसोर्स विच कैन बी प्लग्ड इनटू द सिस्टम एंड इट इज प्रोड्यूसिंग, इट इज एफिशिएंट। तो ये सिर्फ एक प्रोफेसर के बस की बात नहीं है, इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ
अलाइन होना पड़ेगा, एक हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा जहां पे एक प्रोफेसर और एक एआई का एक्सपर्ट, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बैठ के करिकुलम लिख रहे होंगे। अच्छा एमटी, ये कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो, इसको इस तरह से देखें आप कि एक बच्चा अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, या एक बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, या डेटा साइंस पढ़ रहा है, या कोई और फील्ड में पढ़ रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रोफेसर है वो कोई प्रोजेक्ट देता है, राइट। 6 महीने का, कुछ यूनिवर्सिटी का 6 महीने का सेमेस्टर है, कुछ महीने का 4 महीने का सेमेस्टर है। व्हाट आई सी कि वो बिल्कुल तो रेडीनेस करके नहीं दे सकती यूनिवर्सिटी ना, बट ये ज़रूर कर सकती है कि अगर इनकी कोलैबोरेशंस उस फील्ड की स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, अगर उनके साथ ये कोलैबोरेशंस कर लें और उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर फॉर 4 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स लगाएं, तो जो एक पूरा साइकिल है उस ऑर्गेनाइजेशन का समझने का, ठीक है, हाउ the organization works, what needs to be done, what are the expectations that can be, implemented or helpful for the enterprise sector or the manufacturing sector or the industrial sector. और इसमें फिर इसका मतलब है कि जो आप बात कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी इस एंगल पे सोचना होगा और अपना I think few are doing it. I believe there are few organizations who are regularly doing it. और बाकी भी सबको ये रोड अडॉप्ट करनी होगी, दोनों तरफ से ही आएगा ना, कि इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे सोचें और फिर प्राइवेट सेक्टर भी अपनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए वो भी आगे आए और इस तरह के प्रोग्राम ऑफर करें जहाँ पे दोनों रियल वर्ल्ड यूज केस बन गया आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। इन द एंड एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान? और वैसे भी आजकल ज़्यादातर तो छुट्टियां हैं बच्चों को, ठीक है। द मैसेज इज बी क्यूरियस, always try to learn new things, do mistakes, if you are failing, no worries, it's a part of journey. So there is a saying, fail forward. Okay. Right? Learn, unlearn and relearn. Yeah. Okay. So it's a part of a journey, I think, and so failure is not a bad thing. No, it's every individual you've seen, जो हम अपने एंटरप्राइज ग्लोबली भी देखते हैं, so failure is there. मतलब क्या किसी साइंटिस्ट ने पहले इतनी थ्योरी बना ली थी? So to reach there, you have to fail. So I think the important message is to learn. I hope कि हमारी यूथ इसका फाहद साहब का मैसेज को इस तरह ट्रांसलेट ना करे कि अगले साल पाकिस्तान में तमाम बोर्ड्स में, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में फेलियर रेट 70% पे पहुंचो। नहीं, सारे फेल ही हो जाए ना। ह्यूमन साइकोलॉजी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज the fear and the reward. Yeah. And these are the two things which actually हमें कोई भी एक्शन लेने से या एक्शन लेने से रोकती हैं या लेने का कहती हैं। Fear and reward, these are the two things. बिल्कुल ठीक है। Other than that, I don't think there is any third thing which comes between these two. So the message only is कि educate yourself, learn about new things, experiment on different things, and I hope, wish you best of luck. And AI is one of the field where I think it's a lethal combination with any industry, with any field. Even you talk about AI or biosynthesis or nanotechnologies, general science, whatever it is, it's a awesome combination to go with it. Thank you so much Fahad साहब for being on the show, and I wish कि हम future में भी आपको invite करेंगे, and out of your busy time you will be able to spare a few minutes for us. Thank you so much AMT. It was honored to be a part of this discussion on Techistan platform. Thank you. So दोस्तों, टेकिस्तान, टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान
और टेकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से आई होप आज का जो हमारा पॉडकास्ट था और हमारे गेस्ट वाज एबल टू डिलीवर अ क्वालिटी मैसेज टू आवर यूथ एंड ऑडियंस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.